Good afternoon, students. So today we are going to start our next topic of this chapter, chapter number second, from hunting, gathering to growing food. And this is our lecture number second. So let's start. So students, so far we studied about the hunting, gathering, hunting, gathering. And today, first of all, we studied about the Tushar's train journey. Okay, then we study what we are going to study in this chapter. So yesterday we discussed about the the earliest people movement. Okay, the earliest people movement, and second we discussed about the how do we know about these people. Okay, so today we will start our next topic, choosing a place to live in. Okay, so student, actually this is an essential chapter for you studying history because it brings the importance of migration and how it shaped travel for people. After the cavemen, we call the people who inhabited earth at that time as hunters and gatherers. So the people then were named so because of their wild hunting habits, where they would hunt for wild animals, fishes, wild animal, fishes, birds, nuts, fruits, etc. And these people could not stay in one place because they would exhaust all the resources available in the land after a certain period. So now also to hunt animals that would be on the move always was another reason for them to move around often. So at the time getting, so now student, these people couldn't stay in one place because they would exhaust all the resources available in the land after a certain period. So now also to hunt animals that would be on the move always was another reason for them to move around often. So at the time getting fresh water was also our problem. So they would be on the search always and trying not to exhaust the water of one place either. Okay, so today student, today we will discuss, and then after that we studied about the how do we know about these people. Okay, so archaeologists have found the various tools that they used, which were made of wood, stone, and bone, which stood the stand of time. And these tools were used for hunting purposes, chopping up the meat, making cloths out of animal fur, and chop and chop plants. These resources were found mostly in places near water bodies and caves because these areas had more stone for them to make tools out of. Okay, so now we will discuss choosing a place to live in. Choosing the place to live in. Okay, today we will discuss from here. So now, student, let's start. चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन, तो रहने के लिए एक प्लेस जो वो निर्धारित करते थे कि कहाँ रहना है, कैसे रहना है, कहाँ पर, तो वो हमने आज डिस्कस करना है. सो लुक एट मैप 2 below. This is the map number 2. Okay, some important archaeological sites are here. So all the places marked with red triangles are sites
from which archaeologists have found evidence of hunter gatherers. Hunter gatherers lived in many more places. Yes, look at this map, students. एक्चुअली इस मैप के अंदर आपको क्या दिखाई गई है, कुछ इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स दिखाई गई हैं, जहां पर क्या होता है, मतलब वो साइट्स जहां से रिमेन्स मिले हैं, किस रिमेन्स मिले हैं अर्ली पीपल के, और कौन उनको हमने पिछले वाले लेक्चर में क्या था कि आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं, इन रिमेन्स को ढूंढते हैं और उन पर स्टडी कर कर हमें बताते हैं। तो यहाँ पर कुछ एक देखो, जैसे यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट आपके पास ये है, जैसे भीमबेटका, ओके, भीमबेटका एंड कुरनोल, कुरनोल केव्स, हुंसगी, ओके। तो ये देखिए, ये आपके रेड ट्रायंगल में वो कह रहा है आपको कि रेड ट्रायंगल में ऑल द प्लेसेस मार्क्ड विद रेड ट्रायंगल आर साइट्स फ्रॉम व्हिच आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ हंटर गैदरर्स। ये वो वाले साइट्स हैं जहां से जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनको हंटर गैदरर्स के कुछ एविडेंस मिले हैं। और आप यहाँ पर इस मैप में आप देख सकते हैं कि जैसे ये साइट्स हैं, कुरनोल के, हुंसगी, बेमबेटका, तो ये देखिए, ये यहाँ पर नर्मदा, जो आपकी नर्मदा नदी है, ओके, दिस इज द नर्मदा नदी, ओके। तो ये नर्मदा नदी के किनारे के बैंक पर आपका भीमबेटका है, ओके। यहाँ पर हुंसगी, कुरनोल, ये आपके यहाँ पर जो कृष्णा रिवर जो है, कृष्णा रिवर, ये यहाँ से बहकर जा रही है, तो इनके पास, तो हमने कल देखा था कि ज्यादातर ये क्यों रहते थे ये लोग किसी भी रिवर के बैंक पर, क्योंकि इन्हें वोटर की, हर एक को सरवाइव करने के लिए वोटर जो है नेसेसिटी है। तो इसीलिए पहले उस तरह के जो आज के टाइम में हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वोटर के लिए, वो पहले टाइम में नहीं होते थे। तो और वोटर जो है सरवाइव करने के लिए बहुत जरूरी है, इसीलिए ये जो अर्ली पीपल था वो ऐसे प्लेसेस ढूंढा करता था जहां से कोई रिवर जाती है, रिवर बहती है, और वो रिवर के बैंक पर ही रहता था ताकि उसे वाटर इजिली अवेलेबल हो जाए, ओके। So only some are shown on the map. So many sites were located near source of water, such as river and lakes. और अभी मैंने आपको बताया किस वजह से, वो जो आपको ज्यादातर जो साइट्स है वो कहाँ पर लोकेटेड मिलेंगी, नियर सोर्स ऑफ वाटर सच एज रिवर्स एंड लेक्स। So as stone tools were important, people tried to find places where good quality stone was easily available. अच्छा, हमने ये भी हमने कल भी डिस्कस किया था कि जो स्टोन टूल्स होते हैं वो उस टाइम पर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हुआ करते थे, इसीलिए ये जो अर्ली पीपल था वो ये ट्राई किया करता था ऐसे प्लेस ढूंढने की जहां पर उनको एक गुड क्वालिटी का जो स्टोन है वो उनको मिल जाए, इजिली अवेलेबल हो जाए। ऐसे साइट्स, वो ऐसे प्लेसेस ढूंढा करता था जहां पर उनको स्टोन जो है वो अच्छे गुड क्वालिटी का मिल जाए, ओके। सो स्टूडेंट, यहाँ आप देख रहे हो, देखिए कुछ एक पैलेयोलिथिक साइट्स, नियोलिथिक साइट, ओके, मेगालिथिक साइट्स, अर्ली विलेजेस, ओके, एंड मॉडर्न सिटीज। सो ये हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे इन सब के बारे में, ओके। देन स्टूडेंट्स, यस, रॉक पेंटिंग्स एंड व्हाट दे टेल्स अस। अब हमने देखा कि जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, जैसे आपने पीछे क्या देखा यहाँ पर कि ये जो कुछ एक साइट्स थी, उन साइट्स से काफी रिमेन्स मिले हैं आर्कियोलॉजिस्ट को, और वहां पर उन्होंने देखा कि ये लोग यहाँ पर रहते थे। अच्छा, हमने आगे भी देखेंगे, जैसे अभी जो केव लोग जो हैं उस टाइम पर अर्ली पीपल केव में रहा करता था, ठीक है, गुफाओं में रहते थे। और उसके साथ साथ वो रोक वगैरह का आप देखेंगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल था रोक का। अब केव में अर्ली पीपल रहता था, कैसे पता चलता है हमें, क्योंकि इसलिए पता चलता है कि कई सारी केव्स आपको हमें ऐसी मिली हैं जहां पर अंदर क्या हुई हुई है, पेंटिंग हुई हुई है, ड्राइंग की हुई है उन केव्स के अंदर। किस तरह की, उसमें एक तरीके की वो लाइन पेंटिंग थी। वो पहले जो अर्ली पीपल था उसको बहुत अच्छी पेंटिंग तो नहीं आती थी, लेकिन अगर वो केव में रहता था ना तो वो इस तरीके से ऐसे लाइन पेंटिंग, जैसे इस तरह के ऐसे हाथ पैर बना दिए, ये ऐसे बनाता था, ओके। हिरन बनाना होता था तो हिरन इस तरीके से उसके पैर बना दिए, सींग बना दिए, तो इस तरह की वो पेंटिंग बनाते थे, ठीक है। और क्योंकि देखिए, आप देखिए, जब वो पेंटिंग बनाते थे तो वो एक जैसा उस टाइम पर चारों तरफ उनके जो सराउंडिंग में जो भी होता था, जैसे हमने देखा कि वो हंटर गैदरर्स थे, ठीक है, हंटिंग किया करते थे,
तो उनके ज्यादातर पिक्चर्स में आपको यही दिखने को मिलेगा कि जैसे हिरन है यहाँ पर, और जो एक हंटर है वो क्या कर रहा है, वो शिकार कर रहा है उसका, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पेंटिंग देखने को मिलती है। सो यू कैन सी, यस, लुक एट दिस पिक्चर। सो रॉक, ये देखिए, लुक एट दिस पिक्चर, दिस वन, ओके। आप ये देखिए, ये पेंटिंग है, ये रॉक पेंटिंग एंड व्हाट दे टेल अस। ये एक रॉक पेंटिंग आपको देखने को मिल रही है, और ये पेंटिंग आपको क्या दिखा रही है? सिंपल सी बात है, यहाँ साफ दिख रहा है, ये आपको एक हिरन टाइप दिख रहा है ना, ठीक है। और ये एक क्या दिख रहा है, कोई पर्सन है, ठीक है। ये एक तरीके की लाइन पेंटिंग है। सो ये पेंटिंग क्या है कि अ पेंटिंग फ्रॉम अ रॉक शेल्टर डिस्क्राइब द पेंटिंग। मैनी ऑफ केव्स, यस, यू कैन सी इन दिस पिक्चर। देखिए, ये पिक्चर देखिए आप, इस पिक्चर के अंदर आपको इस तरह की पेंटिंग दिखने को मिल रही है रोक पर। ये देखिए कैसे आपको लाइन पेंटिंग बनाई हुई है, ये पिक्चर्स आप देख रहे हो। ये देखिए लाइन में इस तरीके से लाइन पेंटिंग है कि ये आपको अर्ली पीपल ने अपनी पेंटिंग्स बनाई हुई है। तो इस तरीके से आपको पेंटिंग देखने को मिलती है। सो मैनी ऑफ द केव्स, अब ये केव है, केव के अंदर का आपको दिखाया जा रहा है। केव के अंदर इस तरह की पेंटिंग आपको दिखने को मिलेंगी। सो मैनी ऑफ केव्स इन विच दे दीज अर्ली पीपल लिव्ड हैव पेंटिंग ऑन द वॉल्स। अब जब वॉल्स के ऊपर, उनको केव में वॉल्स के ऊपर जो आर्कियोलॉजिस्ट थे वो उनको इस तरह की पेंटिंग देखने को मिली, तो उनसे उन्होंने ये आइडिया लगाया कि उस टाइम पर शायद अर्ली पीपल जो है वो केव में रहता था। अब उसको केव में रहने की क्यों जरूरत पड़ती थी? बड़ी सिंपल सी बात है कि देखो क्या होता है, जैसे आप देखते हो कि विंटर का टाइम भी आता है, समर का टाइम भी आता है, रेन भी होती है, ठीक है, बारिश भी होती है। तो हर इंसान को बचने के लिए एक ऐसा प्लेस तो चाहिए ना जहाँ पर वो इन सब चीजों से, गर्मी सर्दी या बारिश से बच सके। तो पहले टाइम में इस तरह की कोई रेजिडेंस तो होती नहीं थी, तो ये लोग अपने को बचाने के लिए इस तरह के केव्स में रहते थे। ओके, सो सम ऑफ द बेस्ट एग्जांपल आर फ्रॉम मध्य प्रदेश एंड सदर्न यूपी। तो ये आपको मध्य प्रदेश में केव की मैंने आपको पिक्चर दिखाई है, ये मध्य प्रदेश में ये केव है, उस केव के अंदर की पिक्चर दिखाया है आपको। एंड दिस पेंटिंग शो वाइल्ड एनिमल्स drawn with great accuracy and skill. Okay, so now, yes, it is given in your book, the students. Yes, भीमबेटका, भीमबेटका इन प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश। आज के टाइम में ये मध्य प्रदेश पे है। भीमबेटका हम पीछे देख चुके हैं इस मैप में। लुक एट दिस मैप। ओके, भीमबेटका इज हियर। ओके, दिस इज भीमबेटका, मध्य प्रदेश। ओके, so students, Bhimbetka in present day Madhya Pradesh, and this is an old site. This is an old site with caves and rock shelter. People choose these natural caves because they provided shelter from the rain, heat, and wind. So these rock shelters are close to the Narmada Valley. तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये आपको एक दिखाया हुआ है भीमबेटका, ठीक है, जो आज के टाइम में मध्य प्रदेश में है। सो दिस इज एन ओल्ड साइट, ये काफी पुरानी एक साइट है विद केव एंड रॉक शेल्टर। देखिए आपके पास ये पिक्चर आपको बुक में दिखाई गई है, रॉक शेल्टर्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह की केव्स और आपको रॉक शेल्टर्स ही मिलेंगे। सो इसमें क्या है आपके पास कि पीपल दो चूज दीज नेचुरल केव्स। लोग जो थे ना उस टाइम पर इस तरह के नेचुरल केव्स को चूज किया करते थे, बिकॉज दे प्रोवाइड शेल्टर फ्रॉम द रेन, हीट एंड विंड। क्योंकि उनको क्या करना होता था, उनको अपने सिर पर एक छत चाहिए होती थी, किससे बचने के लिए? रेन, हीट एंड विंड से बचने के लिए। सो दीज रॉक शेल्टर्स आर क्लोज टू द नर्मदा वैली। और इस तरह के जो रॉक शेल्टर हैं ये वाले, ये आपको नर्मदा वैली के पास मिलते हैं। ओके, देन यस, नेक्स्ट इज साइट्स। ठीक है, साइट्स, ये पीछे आपके पास मैप में भी आपने देखा साइट वर्ड आया है आपके पास, बार बार साइट्स आ रही हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि साइट्स क्या होती हैं। साइट्स, ओके, तो साइट्स के बारे में हम देखते हैं। साइट्स आर प्लेसेस, sites are places where the remains of things, tools, pots, building, etc. were found. Okay, sites
वो प्लेसेस होते हैं जहां पर टूल्स, पोर्ट्स, बिल्डिंग्स और इस तरह की और बहुत सी चीजें, बहुत सी थिंग्स जो उनके रिमेन्स आपको मिलते हैं, उन्हें बोलते हैं साइट्स। ओके, सो आर्कियोलॉजिस्ट इसी तरह के साइट्स को क्या करते हैं, इसी तरह के साइट्स को ऊपर को ढूंढते हैं और वहां से रिमेन्स कलेक्ट करके हिस्ट्री बताती हैं। सो दीज वर मेड, यूज्ड एंड लेफ्ट बिहाइंड बाय पीपल, left behind by people, and these may be found on the surface of the earth, buried under the earth or sometime even underwater. अच्छा, ये जो ऐसी जो चीजें हैं, ऐसी जो थिंग्स हैं, वस्तुएं हैं, उनका निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वो उन्हें वहीं छोड़ गए। ओके, तो ये जो है ना, ये जो साइट्स हैं, ये साइट्स आपको अर्थ के ऊपर भी मिल जाएंगी, सरफेस पर भी मिल जाएंगी, आपको ये अर्थ के नीचे भी मिल जाएंगी, और या फिर सम टाइम इवन अंडर वाटर, इवन आपको ना अंडर वाटर भी ऐसी कुछ साइट्स देखने को मिलती हैं। ठीक है, आपने कई बार देखा हो, अगर हिस्ट्री वाला आप चैनल खोलें तो उसमें आपने देखा हो कि अंडर वाटर भी कुछ कंस्ट्रक्शंस हुई हुई मिलती हैं। वो ऐसा इसलिए है कि ये नहीं है कि वाटर के अंदर उन्होंने पहले कोई बिल्डिंग्स बनाकर रहते होंगे अर्ली पीपल, नहीं। ऐसा है कि ये हम बात कर रहे हैं कितने साल पहले, 20 लाख साल पहले, 2 मिलियन ईयर्स अगो पहले की बात कर रहे हैं। तो वहां उस टाइम में और आज के टाइम में बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं। उस टाइम में शायद ऐसे कई प्लेसेस थे जहां पहले रिवर नहीं हुआ करती थी। ठीक है, और आज के टाइम में वो प्लेसेस क्या हो गए हैं, पानी वहां पर रिवर आ गई है कोई ना कोई। ठीक है, पानी आ गया वहां पर। और आज के टाइम में जहां पर पहले पानी था, जहां पर आज के टाइम में पानी है, शायद वो पहले क्या थे, प्लेन एरिया हुआ करते थे। तो उस टाइम पर जो प्लेन एरिया हुआ करते थे जहां पर लोग रहते थे, आज वो पानी क्या वहां पर वाटर आने की वजह से वो अंडर वाटर वो साइट्स देखने को मिलती है। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फाइंडिंग आउट अबाउट फायर। फाइंडिंग आउट अबाउट फायर। अच्छा, ये आपका कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फायर। यानी कि उस टाइम पर जब फायर की बात करी जाती है, तो फायर यानी कि तब भी फायर जो है थी, लोग जब इन्वेंट हुई होगी फायर, तो उस टाइम पर कैसा उन्हें जो है अर्ली पीपल था उसको कैसा लगा होगा। ठीक है, ये हम देखेंगे। Yes, finding out about fire, students. So find the Kurnool cave on the map 2. मैप 2 पर आप देखें। यस, मैप 2 जो आपको पीछे देखो, पीछे देखिए आप पहले वो जो मैप था, मैप 2। यस, यहाँ पर आपके पास आप क्या ढूंढेंगे, इसमें कौन सा प्ले आपने ढूंढना है, कुरनोल केव। ओके, दिस इज आवर कुरनोल केव ना, कुरनोल केव। तो लुक एट दिस मैप, दिस इज कुरनोल, और ये कुरनोल किसमें है, आंध्र प्रदेश। ओके, आंध्र प्रदेश में, वेयर इज इन आंध्र प्रदेश, वेयर इज कुरनोल, दिस इज कुरनोल। Clear? So Kurnool caves on map 2, traces of ash have been found here. अब देखिए कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि हमें कैसे पता चला कि उस टाइम पर अर्ली पीपल ने जब फायर को इन्वेंट किया होगा। तो किस लिए कैसे पता चलता है हमें, क्योंकि हमें वहां पर इस साइट पर कुरनोल केव में हमें किस चीज के ट्रेसेस मिले हैं, ऐश की। ऐश मतलब राख। ओके, सो जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उनको क्या मिला, ट्रेसेस ऑफ एश हैव बीन फाउंड हियर, किसमें, इन कुरनोल केव, एंड दिस सजेस्ट दैट पीपल वर फैमिलियर विद द यूज ऑफ फायर। और इन एशेस के ट्रेसेस जो उन्हें मिले आर्कियोलॉजिस्ट से, इसी से ये यही सजेस्ट करता है कि उस टाइम पर जो पीपल थे, लोग थे, वो फायर के यूज से फैमिलियर थे, उनको फायर का पता था। एंड फायर कुड हैव बीन यूज फॉर मैनी थिंग्स, और फायर का जो यूज था, शायद बहुत सारी चीजों के लिए फायर का यूज किया जाता था, एज अ सोर्स ऑफ लाइट, जैसे वो लाइट के लिए, ठीक है, लाइट के लिए, सो इसको फायर को एज अ सोर्स यूज करते थे। टू रोस्ट मीट,
मीट को रोस्ट करके खाने के लिए। अब पहले क्या था कि जब फायर की इन्वेंशन नहीं हुई थी, तो उस टाइम पर जब अर्ली पीपल था तो क्या करता था, हंटिंग करता था। जैसे भी उसको जो भी वो हंटिंग करने के बाद जो भी उसको एनिमल मिला, हिरन मिला, शेर मिला, जो भी मिला, उसको ऐसे ही वो कच्चा खा जाता था। ठीक है। अब जैसे जब फायर जो है वो आई, तो फायर को उन्होंने क्या करा होगा, बाय चांस ऐसा हुआ होगा कि जब वो आग में उसको पकाया होगा, और उसके बाद उसको जब उसका गोश्त खाया होगा, रोस्टेड हो गया वो मीट, और वो उन्हें बहुत अच्छा लगा होगा, तो उन्होंने वहां से सीखा होगा कि भाई कि जो मीट है उसको पका कर खाया जाए तो वो ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, वो टेस्टी हो जाता है। तो इस तरीके से उन्होंने धीरे धीरे, देखो इंसान करके सीखता है, तो अर्ली पीपल ने भी धीरे धीरे जो है चीजों को इन्वेंट किया, उनसे सीखा, उनको देखा, उनसे सीखा और यूज किया। एंड उन्होंने वीट को रोस्ट करने में लाइट का उसका फायर का यूज करते थे, एंड टू स्केयर एनिमल अवे एनिमल, और वो एनिमल्स को अपने से दूर रखने के लिए फायर का यूज करते होंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? यस, लुक एट दिस पिक्चर। तो देखिए किस तरीके से ये यहाँ पर फायर जो है आपका, जो अर्ली पीपल है ये, और ये इस फायर का यूज कर रहे हैं हीट लेने के लिए। और ये देखिए, आप देखें ये केव है, उस केव के अंदर वो इस फायर को यूज कर रहे हैं। ओके। अब ये फायर का यूज वो हीट लेने के लिए कर सकते हैं, या लाइट के लिए, लाइटनिंग के लिए। ओके, एनिमल्स को अपने से दूर रखने के लिए, या अपनी जो मीट है अपना उसको रोस्ट करने के लिए इस फायर का वो यूज करते हैं। नेक्स्ट इज द चेंजिंग एनवायरमेंट। अ चेंजिंग एनवायरमेंट, एनवायरमेंट कैसे एनवायरमेंट में चेंज आया, अ चेंजिंग एनवायरमेंट। चेंजिंग एनवायरमेंट कैसे, देखिए स्टार्ट करते हैं हम। मान लो पहले क्या था, जब ये अर्थ थी उस पर अर्ली पीपल से पहले, ठीक है, जब ये अर्थ हमारी अर्थ थी और ये हमारा मान लो सन है, ठीक है, तो अब अर्थ क्या थी, उस पर ज्यादातर वो किससे ढका होता था, ग्लेशियर होता था अर्थ पर, स्नो से ढका होता था अर्थ। तो उस टाइम पर अर्थ जो है वो बहुत ज्यादा कूल हुआ करती थी, तो सन की जब रेंज इनके ऊपर पड़ती थी ना, तो वो ज्यादातर अर्थ के सरफेस पर नहीं पड़ती थी, क्योंकि उस टाइम पर पूरा ये स्नो से कवर होता था, ग्लेशियर्स होते थे। तो उस टाइम पर एनवायरमेंट काफी कूल हुआ करता था। So around 12,000 years ago, there were major changes. There were major changes in the climate of the world. अब 12,000 years ago, स्टूडेंट ये आपके लिए एक देखो एक्टिविटी है, 12,000 years ago। मुझे ये टाइम बताओ, ये 12,000 years ago का मतलब क्या हुआ? 12,000 years ago का मतलब आपको मैंने बताया था कि जो जीसस क्राइस्ट के बर्थ को लेकर जीरो चलते हैं, यहाँ से अगर हम 2000 ईयर्स आगे के चले हम अब, क्योंकि 2021 में हम लोग हैं, और 2000 में चले तो पीछे हमारे पास ये कौन सा बीसी, ये कौन सा बीसी का टाइम है, तो 2000 12,000 में से निकाल दें तो ये हमारा कितने साल पहले का, 10,000 बीसी का टाइम है। ओके, यानी कि अराउंड 12,000 ईयर्स एगो, इट मींस 10,000 बीसी में देयर वर मेजर चेंजेस इन द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड में क्लाइमेट में बहुत सारे चेंजेस थे, विद अ शिफ्ट टू रिलेटिवली वार्म कंडीशंस, जिसमें इस 10,000 ईयर्स अगो, यानी 12,000 ईयर्स अगो, यानी 10,000 बीसी में हमारा क्लाइमेट, वर्ल्ड का जो क्लाइमेट था उसमें चेंज किसके साथ आया, कि क्या हुआ कि पहले क्या था, पहले सारा ग्लेशियर था, उसके बाद अर्ली पीपल आया, उसने एक्टिविटी करनी शुरू की, धीरे धीरे क्या हुए, फायर का यूज किया, धीरे धीरे वो ग्लेशियर जो है जब सन की रेज उस पे पड़ती चली गई तो ग्लेशियर पिघलते गए, ठीक है, मेल्ट हो गए। और फिर क्या हुआ, सरफेस निकल आया, सरफेस निकल आया, तो उससे आप देखते हो कि जब सरफेस आया तो वहां पर ग्रासलैंड्स जो है वो डेवलप हो गई। ठीक है, जब ग्लेशियर हटे, स्नो हटी, तो वो बाद में वहां पर प्लेन एरिया में वहां पर ग्रासलैंड जो है वो डेवलप हो गई। ओके, तो वहां पर वार्म कंडीशन में वो चेंज हो गए, यानी अब धीरे धीरे कंडीशन कैसे होने लगा, एनवायरमेंट वार्म होने लगा। सो इन मैनी एरियाज दिस लेड टू डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड। तो कुछ मतलब कि इन मैनी बहुत सारे एरियाज में ये ग्रासलैंड में डेवलप हो गई, जब ग्लेशियर वगैरह सब मेल्ट हुए और वहां पर प्लेन एरिया आया, तो इस तरह की देखो ग्रासलैंड क्या होते हैं, ये देखिए आप ग्रासलैंड का पिक्चर है ये, तो ये किस तरह के ग्रासलैंड में वो डेवलप हो गए। ओके, एंड दिस इन टर्न led to an increasing number of deer, antelope,
goat, sheep and cattle, that is animal that survive on grass. अब जब ग्रास लैंड डेवलप हुए तो उसकी वजह से जो ग्रास को के ऊपर सरवाइव करने वाले जो क्या है एनिमल्स हैं, ठीक है। जैसे पहले क्या आता है एंटीलोप में, देखिए ये एंटीलोप है आपके, तो ये क्या खाते हैं, ये इस तरह के एंटीलोप है, डियर, गोट, शिप, कैटल, एनिमल्स, तो ये सब जो ग्रासेस के ऊपर पर सरवाइव करते हैं, ग्रास खाते हैं, तो इनका भी नंबर इंक्रीज हो गया। ओके, इस तरह का नंबर इंक्रीज हुआ। देन क्या हुआ, फिर उसके बाद जब ये आपके पास पहले ग्रासलैंड बनी, ग्रासलैंड से फिर धीरे धीरे इस तरीके के जो एनिमल्स हैं जो ग्रासेस को खाते थे, तो वो उनका नंबर बढ़ गया, ठीक है, क्योंकि अब वो उनको ग्रास मिलने लगी खाने के लिए, तो वो नंबर बढ़ता चला गया। एंड देन क्या हुआ, देन दोज हु हंटेड दीज एनिमल्स, और वो जो इन एनिमल्स की क्या करते थे, जो हंट क्या करते थे, इनकी शिकार क्या करते थे, नाउ फॉलो देम, अब वो इनको फॉलो करने लगे, लर्निंग अबाउट देयर फूड हैबिट्स एंड देयर ब्रीडिंग सीजन। अब क्या हुआ कि जो लोग थे, ठीक है, जो पहले अर्ली पीपल था, जब इस तरीके से धीरे धीरे नंबर ऑफ एनिमल्स जो है वो ग्रासलैंड की वजह से उनका नंबर इंक्रीज हुआ, तो जो हंटर गैदरर्स थे, जो अर्ली पीपल था, उन्होंने इनको फॉलो करना शुरू किया, क्योंकि ये क्या करते थे, एक ग्रासलैंड पर से दूसरे ग्रासलैंड पर, दूसरे ग्रासलैंड से तीसरे ग्रासलैंड के ऊपर ये क्या करते थे, जाया करते थे, ये सभी ढूंढने के लिए ये एनिमल्स, इनके पीछे पीछे ये अर्ली वीमेन भी इनके पीछे पीछे इनको फॉलो करता था शिकार करने के लिए। तो जब शिकार करना शुरू किया, अब देखो इनका तो वो मीट मारकर खा जाता था, लेकिन इसके साथ साथ जैसे और एनिमल्स, जैसे हॉर्सेस हो गए आपके, काऊ हो गई, तो और इस तरह के एनिमल भी शुरू हुए, तो वो उनके नंबर्स भी बढ़ने लगे। अब ये क्या हुआ, इनके यहाँ से इस फूड की तो फूड की जो नेसेसिटी थी वो तो इनसे पूरी हो जाती थी, लेकिन इनके अलावा जो और एनिमल्स थे, काऊ थी, ठीक है, बुफेलो था, या आपका जैसे आप ये कहें कि काऊ हो गई और दूसरे हॉर्सेस वगैरह हो गए, अब वो एक्स्ट्रा थे, तो उनको क्या करने लगेंगे, उनको सर्च करने लगे, उनको देखने लगे, ठीक है, उनको ये देखने लगे कि वो उनकी फूड हैबिट देखने लगे कि एनिमल्स क्या खाते हैं ये है। और साथ ही साथ जब ब्रीडिंग सीजन आता था, क्योंकि उन्हीं एनिमल से जब उनका ब्रीडिंग सीजन आता था, तो और जो है उनके बच्चे होते थे, तो उन्होंने ब्रीडिंग सीजन को नोट करना शुरू किया। उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने देखा कि ये जो है, जैसे काऊ हो गई, ठीक है, भैंस है, उससे मिल्क मिलता था, और वो क्या खाती थी, वो घास ग्रास खाते थे, तो इन्होंने सोचा कि ग्रास इनको खिलाकर उस मिल्क का यूज किया जाए पीने के लिए। तो इस तरीके से धीरे धीरे हंटिंग के साथ साथ वो धीरे धीरे रेयरिंग का काम, इनको पालने का काम करने लगे। ओके, सो इस तरीके से धीरे धीरे डेवलप हुई चीजें। क्लियर स्टूडेंट, सो इट इज लाइकली दैट दिस हेल्प पीपल टू स्टार्ट थिंकिंग, इन सब चीजों ने किस चीज में हेल्प की, कि लोगों को सोचने के लिए हेल्प की। अब ये लोग जो हैं, इन्होंने सोचना शुरू किया अबाउट हर्डिंग, हर्डिंग के बारे में सोचना शुरू किया, रेयरिंग के बारे में, इन एनिमल्स की रेयरिंग के बारे में, इनको पालने के बारे में वो सोचने लगे कि क्यों ना इन एनिमल्स को क्या किया जाए, इनको पाला जाए, इनकी हर्डिंग की जाए, रेयरिंग की जाए, ताकि इनसे मिलने वाली चीजों को हम यूज कर सकें। तो धीरे धीरे इंसान ने इस चीजों को सीखना शुरू किया। एंड देन फिशिंग ऑल्सो बिकम इम्पोर्टेंट, फिशिंग भी उनके लिए काफी इम्पोर्टेंट बनी, तो वो इस तरह से फिशिंग का काम भी करते थे। और फिशिंग को, क्योंकि वो फूड के रूप में काफी वो रैलिश होकर उसको यूज करते थे, फिश को, तो वो फिशिंग का वर्क भी किया करते थे। ओके स्टूडेंट्स, so today it's enough now, so that's all for today. Have a